Hello and welcome to CS Circuit. Well, I hope you all are enjoying your good health. And today I'm here with new video. It's about Computer Science Grade 9 और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 डेटा एंड एनालिसिस को। और इस वीडियो में जो है हम कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ERQs आर बेसिकली एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। चूँकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे थे कि लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने इंक्लूड करना है, सो दैट्स वाई। And without wasting your time, I'm gonna start this video, so do like and subscribe. So let's start. MCQ number 1 is DASH is a structured or processed collection of data usually associated with a unique body of network. So the right answer is database. ठीक है, it's basically an organized collection of data. ठीक है, that is managed electronically in a computer system. Alright, so the next MCQ is DASH refers to the process of carefully examining and studying data to identify patterns, track conclusions or make the data meaningful. Right answer is data analytics. Basically जो है वो data analytics it helps in decision making. Okay, यानी कि कोई ऐसी चीज़ किसी particular conclusion तक पहुँचना, something to manage. Alright, next one is DASH is the graphical representation of data through use of common charts, infographics and animations. Right answer is data visualization. Next one is DASH is subset of machine learning with emphasis on the simulation or imitation of human brain's behavior by using artificial neural networks. Basically the right answer is deep learning. Deep learning is subset of machine learning. Okay, and basically deep learning और machine learning जो दोनों हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। ठीक है, बेसिकली दे मिमिक ह्यूमन थिंकिंग। ऑलराइट, MCQ number 5 is DASH is use of data to predict future trends and events based on historical data. Predictive analysis is the right answer. ठीक है, MCQ number 6 is DASH is the fast rate at which data is received and acted on. Option number B, velocity is the right answer. ठीक है, velocity refers to the speed at which data is generated, processed. Alright, such as real-time processing. Next MCQ is DASH includes the data which can only take certain values and cannot be further subdivided into smaller units. Option number A is right, discrete data. Basically जो है वो discrete data is made up of a separate distinct unit. Alright, so discrete data को आप जो है वो further divide नहीं कर सकते. Option number A, DASH is the limitation of big data. Option number B is right, unlimited growth of data. Unlimited growth of data जो है वो इस तरह से limited जो limitation consider की जाती है because इसमें कुछ issues आते हैं like इंफॉर्मेशन ओवरलोड के, डेटा की क्वालिटी के इश्यूज़ आ जाते हैं, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट के इश्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज़, ओके, प्राइवेसी रिस्क. ऑलराइट, MCQ number 9 is customer satisfaction levels such as satisfied, dissatisfied and neutral are the examples of DASH data type. So the right answer is ordinal data. ऑर्डिनल डेटा जो है बेसिकली ये जो है वो नेचुरल ऑर्डर और रैंकिंग इस तरह की डेटा जो होता है उसकी टाइप है ये. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज डैश इज़ अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स. सर्वे इज़ द मेथड. सो बेसिकली ये जो था लास्ट MCQ था. नाउ वी आर स्टार्टिंग SRQs एंड फर्स्ट वन इज डिफाइन डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस. आर दे सिमिलर और डिफरेंट? डेटा एनालिटिक्स बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो एग्ज़ामिन करते हैं, स्टडी करते हैं डेटा को. ठीक है, पैटर्न्स को, कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं बेसिकली ताकि हम कोई एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को जो है वो गेन कर सकें डिसीजन मेकिंग के लिए. ठीक है, जबकि जो डेटा साइंस है वो बेसिकली एक मल्टीपल डिसिप्लिन्स जिसमें हम कह सकते हैं कि यूज़ हो रहे होते हैं. मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट यूज़ हो रहे होते हैं, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग. ठीक है, ताकि हम कोई मीनिंगफुल डेटा जो है वो उस एक्सट्रैक्ट कर सकें. ठीक है, Question number 2 is, can you relate how data science is helpful in solving business problems? Basically data science business में इस तरह से help out करती है कि हम efficiency को improve करने के लिए, cost saving के लिए, future trends क्या हैं, future predictions यानी कि कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं या कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेंडिंग में हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको हमें जो है वो जिनको हमें ज़्यादा इन करना चाहिए,
हमें कौन सी चीज़ों को जो है वो ओमिट कर देना चाहिए बिज़नेस से, यानी कि कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, कस्टमर की डिमांड्स क्या है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इसमें जो है वो डेटा साइंस हेल्प आउट करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल है कि रिटेल सेक्टर में अगर हम बात करें तो डेटा साइंस इस तरह से हेल्प आउट करती है कि जो पास्ट सेल्स हैं, यानी कि पास्ट सेल्स का जो डेटा है, सीजनल ट्रेंड्स हैं, यानी कि हम पास्ट सेल्स को देखते हुए उन्हीं ट्रेंड्स को जो है वो चला रहे होते हैं। ठीक है, ताकि हम एक हायर लेवल पे पहुंच सकें, या हम एक मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है उनको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, Question number 3 is database is useful in the field of data science. Defend this statement. Database basically एक जो है वो इस तरह से हेल्प आउट करती है. It's basically organized and structured way of storing information electronically. All right. जैसे कि अगर हम बात करें, नादरा इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा बेस. ठीक है, और अगर डेटा साइंस में हमें किस तरह से हेल्प आउट करती है, जैसे कि डेटा जो है हमारे पास टेबल में, वेल डिफाइंड रिलेशनशिप्स में जो है वो मौजूद होता है. ठीक है, और इसमें हम जो है वो यानी कि मल्टीपल सोर्सेज के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्यूरेसी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और डेटा बेस जो है वो एडवांस यानी एडवांस लेवल की जो डेटा मैनिपुलेशन हो रही होती है, डेटा मैनिपुलेशन के टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, डेटा साइंटिस्ट जो कि कम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर रहे होते हैं, उसमें ये एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए यूज़फुल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन. मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जो है बेसिकली ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट हैं. ठीक है, एंड बेसिकली दे मिमिक ह्यूमन थिंकिंग. अब अगर हम बात करें इनफॉर्मल एजुकेशन में, तो मशीन लर्निंग बेसिकली इसका जो मेन फोकस है वो एल्गोरिदम्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पे होता है. ठीक है, ताकि हम जो है वो डेटा को एनालाइज कर सकें और फ्यूचर प्रेडिक्शंस को हम देख सकें. इसमें कुछ आते हैं मेथड्स, जैसे कि सुपरवाइज्ड जो है सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग. अगर हम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की बात करें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग यानी कि आप जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो लेबल डेटा होता है. ठीक है, आप डेटा को ऑलरेडी लेबल कर लेते हैं. लेट्स सपोज कि दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैट और दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ए डॉग. ठीक है, जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में ऐसा नहीं होता. अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो है उसमें आप डेटा को लेबल नहीं करते. ठीक है, डीप लर्निंग के बारे में हमने बात कर दी कि ये भी सबसेट है मशीन लर्निंग का. ठीक है, और बेसिकली ये ह्यूमन के ब्रेन से इंस्पायर है. ठीक है, और डीप लर्निंग जो है वो आपके पास न्यूरल नेटवर्क्स और कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स को देखते हैं. ठीक है, सो दैट वाज द कंपैरिजन बिटवीन बोथ ऑफ देम. Alright, so next question is what is meant by sources of data? Give 3 sources of data excluding those mentioned in the book. सोर्सेज ऑफ डेटा का मतलब ये है कि डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, वो सोर्सेज जो है वो डेटाबेस हो सकते हैं, सर्वेस हो सकते हैं, सेंसस हो सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे 3 को डिस्कस किया है. दैट आर डेटाबेसेस, लॉग्स एंड APIs. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा सेट. अच्छा, अगर हम बात करें डेटाबेस की तो बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा. और राइट, एंड बेसिकली इट्स स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली. और राइट, और इसको मैनेज किया जाता है DBMS के थ्रू, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए. ठीक है, और अगर हम डेटा सेट की बात करें तो ये भी एक जो है वो स्ट्रक्चर्ड और या हम कह सकते हैं कि प्रोसेस्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होती है. ठीक है, यानी कि यूनिक बॉडी ऑफ नेटवर्क्स, यूनिक बॉडी ऑफ वर्क से रिलेटेड. ठीक है, और ये जो डेटा है, ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है बेसिकली ये किसी तरह से रिलेट कर रही होती है, किसी ना किसी तरह से रिलेट कर रही होती है. जैसे कि अगर हम बात करें ब्रेन ट्यूमर के डेटा सेट की या ब्रेन CT स्कैन के डेटा सेट की. ठीक है, तो हम इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं जो कि हम न्यू ट्रेंड्स को देखते हुए, कॉमन ट्रेंड्स को देखते हुए. ठीक है, डेटा सेट में जो भी हैं. ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज आर्ग्यू अबाउट द ट्रेंड्स, आउटलायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वैल्यूज़ इन अ डेटा सेट. डिस्क्राइब. ऑलराइट, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. ट्रेंड्स बेसिकली डेटा सेट में जो होते हैं ओवरऑल डायरेक्शन और पैटर्न ऑफ द डेटा या डेटा पॉइंट्स को हमें बता रहे होते हैं. ठीक है, अ कंसिस्टेंट इंक्रीज डिक्रीज और स्टेबिलिटी. जबकि आउटलायर्स की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स होते हैं. अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स किस तरह से कि यानी कि क्या हम जो डेटा है हमारे पास उसमें से बहुत बड़ी वैल्यू या फिर बहुत छोटी वैल्यू. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 5 ही स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स हैं 15 आउट ऑफ 100, देन 20 आउट ऑफ 100, 25, इस तरह से 40 अप टू सो ऑन वट एवर. तो हम अगर बात करें कि हमारे पास जो डेटा सेट है
मतलब हम इसमें या तो बहुत छोटी वैल्यू को ले लें या तो बहुत ही बड़ी वैल्यू को ले लें। सो बेसिकली बात आउटलायर्स की ये है कि दीज आर द अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स, ओके। एंड अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ की बात करें तो ये आपके पास हमें ये बताते हैं कि हाउ डेटा पॉइंट्स आर स्प्रेड और क्लस्टर्ड अक्रॉस डिफरेंट रेंजेस और इंटरवल्स, ओके, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल है, स्क्यूड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। सो द नेक्स्ट वन इज़ व्हाई आर समरी स्टैटिस्टिक्स नीडेड। समरी स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें प्रिसाइज ओवरव्यू देने के लिए, डेटा सेट की डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए, उसमें जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह को बताने के लिए हेल्पफुल करती है, ठीक है। एंड हमें डेटा सेट का जो हमारे पास डेटा है उसका कंप्लीट बिहेवियर, उसकी नेचर किस तरह की है, उसमें आउटलायर्स, एनॉमलीज, उसमें ट्रेंड्स क्या हैं, वो हमें तमाम को एक्सप्लेन करने में, समझने में हमें हेल्प आउट करती है, ठीक है। और हमें फर्दर डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस बिग डेटा इन योर ओन वर्ड्स, एक्सप्लेन 3 V's ऑफ बिग डेटा विद रेफरेंस टू ईमेल डेटा। अच्छा, बिग डेटा बेसिकली आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अगर हम बिग डेटा को हम इस तरह से भी एक जो उसकी कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि यूट्यूब, इसकी एक बहुत ही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर हम इसको देखें, यूट्यूब पे देखें कि आप डिफरेंट लोग जो है वो वीडियोस को अपलोड करें, डिफरेंट चैनल्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों के बारे में, लाइक समवन इज़ अपलोडिंग अबाउट फूड, someone is uploading videos about entertainment, someone is uploading videos about education whatsoever, ठीक है। तो बेसिकली फिर इसी तरह से लोग जो है वो इसको स्ट्रीम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, बिग डेटा है, ठीक है। बिग डेटा के एग्जांपल है। V's ऑफ बिग डेटा आर वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम रेफर्स टू द शेयर अमाउंट ऑफ ईमेल्स, अगर हम ईमेल्स के कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक है, जो कि इनबॉक्स में स्टोर की जाती हैं। फिर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपके पास बताती है कि स्पीड एट विच डेटा इज़ जनरेट, प्रोसेस्ड एंड एक्टेड अपॉन, ओके। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम्स को, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ईमेल की बात करें तो वो स्पीड जिसके थ्रू, यानी कि न्यू ईमेल रिसीव हुई, भेजी गई या प्रोसेस हुई, ठीक है। और वैरायटी आपके पास बेसिकली ये बताती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विद इन ईमेल्स, यानी कि टेक्स्ट है, कंटेंट है, अटैचमेंट है, किस तरह का डेटा है, ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ इलस्ट्रेट द पर्पस ऑफ डेटा स्टोरेज, यानी कि हमें ये बताना है कि डेटा स्टोरेज का क्या पर्पस है। वाई वी ऑर्गेनाइज डेटा और वाई वी स्टोर आवर डेटा। तो डेटा स्टोरेज बेसिकली जो है वो इसलिए हम डेटा को ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। हम ऑर्गेनाइज वे में इसलिए अपने डेटा को रखते हैं ताकि हमें फ्यूचर में उसको जो है वो रीयूज़ करने के लिए आसानी हो सके। आप अपने सिस्टम में कोई फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाते हैं, आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को डिफरेंट नेम्स देते हैं बेसिकली, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम अपने सिस्टम को ओपन करें या अपने जो है वो डिवाइस को ओपन करें तो आपके लिए कम्प्लेक्सिटी ना हो आपको उन चीज़ों को ढूंढने के लिए। लेट्स सपोज कि आप जो है वो, अगर आप क्लास 9th में रीड कर रहे हैं या क्लास 9th में अगर आप जो है वो क्लास 9th में अगर आप जो है कंप्यूटर का रीड आउट कर रहे हैं, तो आप कंप्यूटर का या कोई उस पर काम करें तो एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो है उसको ढूंढने में आसानी हो सके, ठीक है। या आप उसको जो है वो इजीली शेयर कर सकें, नेक्स्ट टाइम रिट्रीव कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ basically short answer questions are ended here, and now we're going to move on extensive questions. Question number 1 is sketch the key concepts of data science in your own words. So let's see, data science के कुछ जो है वो key concepts हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली हमने डेटा साइंस के बारे में पहले बात की थी कि ये जो है वो मल्टीपल फील्ड्स को लेके चलता है, यानी कि मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे जो है वो कंबाइनली काम कर रही होती हैं कोई यूज़फुल मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड बेसिकली आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आर सबसेट ऑफ एआई, ओके। एंड अब हम इनको देखते हैं, व्हाट आर दीज। Artificial intelligence basically creating systems that can perform tasks require human like intelligence, basically it's mimic human thinking. Machine learning में है teaching computers to learn from data and make predictions, ठीक है। फिर डीप लर्निंग आपके पास एक जो है वो सबसेट है मशीन लर्निंग का, और इसमें जो है वो ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर होके बना है, ठीक है।
इस तरह के मॉडल हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, यू ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ अबाउट इट। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम जो है वो मॉडल को एनालाइज करते हैं, उसमें से कोई यूज़फुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन मीन्स रिप्रेजेंटिंग डेटा ग्राफिकली टू अनकवर इनसाइट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज develop your own thinking on the various data types used in data science. डेटा टाइप्स जो कि डेटा साइंस में यूज़ हो रही हैं वो हैं न्यूमेरिकल, कैटेगरियल, इसको हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, यानी कि ये जो है वो बहुत ही कॉमन टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। टेक्स्ट डेटा है, टेम्पोरल डेटा है, और उसके अलावा स्पेशल डेटा है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है वो मेजरमेंट्स एंड काउंटिंग के लिए होता है, यानी ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए। और जो क्वालिटेटिव डेटा है वो ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन के लिए। टेक्स्ट डेटा जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, और इसी तरह से टेम्पोरल डेटा इज़ फॉर टाइम रिलेटेड एनालिसिस, ठीक है। और जो स्पेशल डेटा इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, while image and audio data are employed for multimedia analysis, alright. Next question is compare how big data is applicable to various fields of life. Illustrate your answer with various examples. अच्छा जी, बिग डेटा की अगर हम बात करें तो वेरियस फील्ड्स जो हमारी हैं उसमें ये किस तरह से अप्लाई होता है हम देखते हैं उसको। हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो बिग डेटा जो है वो पेशेंट के रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, ट्रीटमेंट्स को प्रिडिक्शंस को करने के लिए, ठीक है। और हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको, हेल्थ केयर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है। फिर फाइनेंस में यूज़ हो रहा होता है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, ठीक है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के लिए। रिटेल में यूज़ हो रहा है बिग डेटा, ठीक है, कस्टमर के बिहेवियर को देखने के लिए जो है वो, ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, रिकमेंडिंग पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें जो है वो बेसिकली सप्लाई चेन की एफिशिएंसी के लिए हम बिग डेटा को यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली हम बिग डेटा को जो है वो फ्यूचर ट्रेंड्स को जो है वो हम बेसिकली मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। सो ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, एनर्जी है, गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेट द एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डेटा। एडवांटेजेस और चैलेंजेस को हम देखते हैं। एडवांटेजेस जैसे कि डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, और एफिशिएंसी इम्प्रूव है, ठीक है, पर्सनलाइज्ड कस्टमर एक्सपीरियंसेस, इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट। जबकि चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो आपके पास जो है वो वॉल्यूम इतना ज़्यादा है डेटा का, यानी कि उसकी हैंडलिंग को करना, उसको हैंडल करना मुश्किल है। वैरायटी है, वेलोसिटी ऑफ डेटा है, ठीक है, क्वालिटी है, उसकी प्राइवेसी है, उसके अलावा जो है वो स्टोरेज एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड की इश्यूज़ हैं, ठीक है। सो दीज आर द चैलेंजेस बेसिकली। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज डिज़ाइन अ केस स्टडी अबाउट हाउ डेटा साइंस इन बिग डेटा हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर। आइए इसको देखते हैं। टाइटल हमारे पास है केस स्टडी का, ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर द इम्पैक्ट ऑफ डेटा साइंस इन बिग डेटा। इंट्रोडक्शन को अगर हम देखें तो हेल्थ केयर बेसिकली जो है वो एक हम कह सकते हैं कि बिग डेटा इज़ ऑलरेडी हेल्पिंग अ लॉट इन हेल्थ केयर, और राइट, यानी कि हम जो है वो पेशेंट की आउटकम्स को देखने के लिए, हम जो है वो फ्यूचर ट्रेंड्स को देखने के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। केस स्टडी है प्रिडिक्टिव एनालिसिस इन डिजीज़ प्रिवेंशन, ठीक है, एक बेसिकली हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें वो प्रिडिक्ट करता है मॉडल्स को हाई रिस्क पेशेंट्स फॉर क्रॉनिक डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। अब जो है वो एनालाइजिंग के बाद उसकी लाइफस्टाइल डेटा, यानी कि वो किस तरह का है, उसके जो पेशेंट की डिज़ीज़ है वो किस तरह की है, डेटा सेट्स यानी कि किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है, बेसिकली इन सब को देखने से जो है वो एक पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो मैनेज की जाती है और फ्यूचर ट्रेंड्स जो है वो मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। प्रिसीजन मेडिसिन एंड जेनोमिक एनालिसिस, उसमें यह है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट लेवरेज बिग डेटा एनालिटिक्स टू एनालाइज जेनोमिक डेटा फ्रॉम 1000 ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। बेसिकली जो है वो मल्टीपल पेशेंट्स से डेटा को जो है वो लिया जाता है, ठीक है, और इनको को रिलेट करके एक पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट आउटकम्स बनाई जाती हैं, यानी डिफरेंट पेशेंट्स के लिए। फिर ठीक है, रिसर्चर्स आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रीटमेंट्स प्लान बनाते हैं डिफरेंट पेशेंट्स के लिए, डिफरेंट प्रोफाइल्स को देखते हुए, डिफरेंट जो है वो उनमें सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं, फिर उसमें वो सक्सेस रेट्स को देखते हैं, उसमें जो है वो फेलियर्स को देखते हैं। सो बेसिकली एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉर प्रोडक्टिव एनालिसिस, ओके। रियल टाइम मॉनिटरिंग है, वेरेबल डिवाइसेस हैं, ठीक है,
फिर उसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन है। बेसिकली ये जो हम अगर जो हम केस स्टडी देख रहे हैं, इसमें हमने जो जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स देखे हैं, इनका अगर हम कंक्लूजन देखें तो वो ये है कि डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स किस तरह से जो है वो हेल्थ केयर में एक अहम रोल जो है वो अदा करें। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें रियल टाइम मॉनिटरिंग की, वेरिएबल डिवाइसेस में जैसे आपके पास डिफरेंट यानी स्मार्ट वॉच है, ठीक है, और ये एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट्स के लिए यूज़ की जाती हैं बेसिकली। ठीक है, एंड टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज। ऑलराइट, सो हियर यू गो, एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब तब तक के लिए नेक्स्ट